Good morning to all. देखो यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़िबा। हां बिफोर क्लास रे हम सब जगह डायमेंशन उडा को बाहर करथिले, समस्त बाहर करि परिलो। हां सो वर्तमान हम देखिबा सेही डायमेंशन को यूज करके तारा कोन कोन एनालिसिस रही छै। ओके सो there are three uses of dimensional analysis. What are these? Number 1, to convert a numerical value from one system to another system. Number 2, to check the correctness of the given relationship. Number 3, to derive a new relationship between various physical quantities. Various physical quantities. Clear? So there are three uses of dimensional analysis. The first use is to convert a numerical value from one system to another system. गोटे numerical value दिया हो बोले ताको कौन करिवो गोटे system रो अन्य system को convert करिवो. System कौन ना that is the system of unit तारा change करिवो. means तमको दिया है MKS system ताको CGS convert कर परिवो. CGS दिया छी MKS रे convert करि परिवो. बुझियला किंबा CGS रो MKS रो smaller unit दिया छी ताको larger unit रे convert करिवो किंबा larger unit दिया छी ताको smaller unit रे convert करि परिवो. हला that is the use of dimensional analysis रो first use. Second use कोन कहउची जे तमको correct given relation दिया है जो equation टे दिया है जो से equation टा correct अछि ना नै तमको check out करियो पड़िबो by using the method of dimension. थर्ड होची कोन किछटा physical quantity दिया है समान को भीतर कोन करियो गोटे relationship क्रिएट करियो by using method of dimension. So गोटे use विषय पढिबा तारा न्यूमेरिकल किछ गोटे करिबा एंड तास तो होम टास्क मध्ये हम करिबा हला. सो फर्स्ट यूज पढिबा first use of dimensional analysis हला. देखो हम जानिले जो गोटे न्यूमेरिकल वैल्यू को गोटे सिस्टम रो और सिस्टम को कन्वर्ट करछ. तो लिखिबी फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड लिखिबी convert a work of 5 joule into another system. Convert a work of 5 joule into another system. Listen, how can you convert it? First, our analysis composite to convert a numerical value from one system to another system. So here the given numerical value is 5. Numerical value is 5. And what is the unit? The joule. And this unit is which physical quantity unit? That is work. Clear? So this joule is now converted into another system. That is another system means what? This joule is the unit of work in SI system. ताको हम कोथरे कन्वर्ट करिया अछि CGS रे
ये वाटर लिखिबी सिस्टम 2 ହେଲା एपड़ लिखिबी नो एपड़ लिखिबी अननोन नोन माने कोन जहा जणा अछि अननोन अर्थ जहा जणा नै बर्तमान नोन सिस्टम टा किए एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम जहा लिखुले एमकेएस लिख परिबो किबा एसआई लिख परिबो बुझिले अननोन सिस्टम टा किए हमरो सीजीएस जो थ्री की तम कन्वर्ट करियो बर्तमान हम देखिबा जे लिखिबी n1 m1 l1 t1 that means कोन एगुडा सब n1 टा होची न्यूमेरिकल वैल्यू केते अछि न्यूमेरिकल वैल्यू टा 5 so put here 5 second system टा होची n2 we don't know what is the value for that is n2 after conversion so you have to find out clear now m1 means केते अछि कि सिस्टम 1 टा को सिस्टम एसआई सिस्टम रे मास को कोथे मेजरमेंट करबा केजी मास रो मेजरमेंट कोथे होची केजी so 1 kg will लिखली subscription गुडा को 1 बोली काहे कि तो देछि because this is the system 1 so that's why we put here 1 the length is measured in meter and the time is measured in second clear similarly in the system 2 the mass is measured in gram length is measured in centimeter and the time is measured in as second clear now ए जो भीतर हमें रखिबा कोन रखिबा आको फिल अप करिया पे गैप फिल अप पाई हमर जागा जो छडाई छी सेटे कोन रहबो दैट इज ए सब गुडा जो हम लिखु छे ये जो फिजिकल क्वांटिटी पे लिखु छे से फिजिकल क्वांटिटी ना डायरेक्ट लिखियो तो फिजिकल क्वांटिटी के वर्क मोडे वर्क लिखी एंड वर्क रो डायमेंशन टा को इनपुट करे m1 l2 t - 2 हला लिखिबी a equal to here a equal to 1 b equal to 2 c equal to -2 हला जहां m रो पावर अछि ताको a सहित इक्वल l रो पावर को b सहित t रो पावर को c सहित लिखिबी where a b and c are dimension less constants जहां के डायमेंशंस नाही हला बुझियला एबीसी कोन डले से माने होचन गोटे वैल्यू गुडा को किंतु जो मान को रिप्रेजेंट करे छै गोटे डायमेंशन लेस क्वांटिटी भाबे बुझिला क्लियर हेलो सो हमरो भोजी करिवा इंग्रेडिएंट्स दरकार हो कि नहीं रेडी हेले इंग्रेडिएंट्स बर्तन रोसे प्रोसेस आरंभ करियो बुझिला रोसे काम आरंभ करियो केमती होची प्रोसेस हां so लिखिबी physical quantity represented in system 1 market कौन लिखिली physical quantity represented in system 1 which physical quantity is given here that is work clear सिस्टम 1 रे फिजिकल क्वांटिटी ता केते देछि 5 जूल 5 जगह हम कोन लिख परबा n1 को लिख परबी हला as joule is the unit of work so what is the dimension for work m1 l2 t - 2 as this quantity is represented in system 1 so we put here m1 power 1 अछि 1 माने केते a l1 power b t1 power c clear बुझियला a b c जगह रे केते पकेबा a 1 2 - 2 जगह रे a b c पुट कराला जेते सिस्टम 1 रे रिप्रेजेंट करछि तो सब्सक्रिप्शन गुडा को मान देले सब्सक्रिप्शन गुडा को मान देले नेक्स्ट सिमिलर लिखिबी फिजिकल क्वांटिटी represented in system 2 in system 2 the value is n2 again the physical quantity is work so m2 power a l2 power b and t2 power c clear
b t1 to power c gives equal to n2 m2 power a l2 power b t2 power c. All of you listen. How is it solved? We have to find out the value for n2. हमर एम कोन अछि n2 रो वैल्यू टा क्वेश्चन मार्क करा अछि n2 रो वैल्यू फाइंड आउट करियो n2 रो वैल्यू को फाइंड आउट करिया हम कोन करबी n2 इक्वल टू n1 m1 to power a l1 to power b t1 to power c divided by m2 power a l2 power b t2 power c. Clear? So n2 equal to n1, that is m1 by m2 whole power a, we represent here like this, l1 by l2 whole power b and t1 by t2 whole power c. Clear? Now as you know all the values of the quantities, so put these values. n1 means kete achi 5. Listen, all of you listen for 1 minute. m1 value kete achi 1 kg, that is 1 kg by 1 gram and the power is 1 here. l1 means how much? That is 1 meter. l2 means 1 centimeter and the power is 2 and this one is 1 second by 1 second, power is minus 2. Clear? Third use of dimensional analysis. The question is like that: obtain an expression for centripetal force which depends upon mass of the body, velocity of the body and radius of circular path. Listen, what is the question? That obtain an expression for centripetal force which depends upon mass of the body, velocity of the body and radius of circular path. So question is obtain an expression for centripetal force. Obtain an expression for, obtain bahar karo, कहा पई एक्सप्रेशन बाहर करिवो सेंट्रिपिटल फोर्स पे एक्सप्रेशन बाहर करो. तो सेंट्रिपिटल फोर्स माने कोन? एटा होची कोन जेतले कि कोनोसी गटे बॉडी के सर्कुलर पाथ रे मोशन करबा समय रे सेंटर अडको जो फोर्स टा की एक्टिंग करिवो ताकू सेंट्रिपिटल फोर्स बोली कुआ जाय. तो एस फोर्स दैट मींस तमे बुझियो फोर्स पे तमे गटे एक्सप्रेशन बाहर करछो. से फोर्स टा कहा का ऊपर डिपेंड करूची? बॉडी रो मास ऊपर, बॉडी रो वेलोसिटी ऊपर एंड सर्कुलर पाथ रो रेडियस ऊपर. बुझिला त तमको बाहर करे रे जी क्वेश्चन रो कोन जाने को पड़िबो. एमिति जदी क्वेश्चन देछि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन और फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर बोली कहिछि कि फाइंड द वेलोसिटी फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स बोली फाइंड द वैल्यू फॉर सेंट्रिपिटल फोर्स बोली जदी कहिछि ताले तम सेटा कोन जानिबो थर्ड यूज बोली जाय. हला वर्तमान से कहा का ऊपर डिपेंड करिला? बॉडी रो मास, बॉडी रो वेलोसिटी और सर्कुलर पाथ रो रेडियस ऊपर डिपेंड करला. ताले केतरा फिजिकल क्वांटिटी रे आसला? गोटे ला सेंट्रिपिटल फोर्स, सेकंड होची बॉडी रो मास, थर्ड होची बॉडी रो वेलोसिटी, फोर्थ होची सर्कुलर पाथ रो रेडियस. क्लियर? सो वर्तमान हमको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी गिवन हे गला. हमें समान को भितर रिलेशन फाइंड आउट करबा. फर्स्ट हमको लेखियो पड़िबो जे कहा पई हम एक्सप्रेशन बाहर करछि. कहा पे बाहर करबा? सेंट्रिपिटल फोर्स पे. जहां पे एक्सप्रेशन बाहर करछो से को क्वांटिटी ऊपर डिपेंड करछि सेटा भी लिखियो पड़िबो. को क्वांटिटी ऊपर डिपेंड करला? मास, वेलोसिटी एंड रेडियस. हला सर्कुलर पाथ रेडियस. तो हम लिखि फर्स्ट आंसर है centripetal force depends upon mass of the body, velocity of the body and radius of the circular path. Listen. So centripetal force पाइन से centripetal force का ऊपर डिपेंड करला? बॉडी रो मास, वेलोसिटी और सर्कुलर पाथ रो रेडियस ऊपर डिपेंड करला. बुझिला? तो वर्तमान में लिखबी मैथमेटिकल
mathematical centripetal force symbol going to be F. Listen, all of you listen. It's most important. एक टर्म टे देखि जाने देला माने तापर तुम करि परिबो. Centripetal force में symbol कौन मिली? जेहेतु force नीचे F बोली symbol. F is proportional to m to power a. What is m? M is the m is the mass of the body. Second one is F is again depends upon velocity of the body. V to power b. Like you were v is the velocity of the body. Third one is again F is proportional to the radius of the circular part r plus c. So like you were r is the radius of the circular path. Clear? बर्तमान क्वेश्चन होची जे जो प्रोपोर्शनल साइन गुडा को दिए गला whether it is directly proportional or indirectly proportional आमी जानि नै इनवर्सली की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होचन कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होचन आमी जानि नै हेले ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हबो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हबो सेटा के डिनोट करबो द वैल्यू ऑफ abc डिनोट करबो if the value of abc is positive then it is directly proportional or if the value of abc is negative then it is inversely proportional बुझिला त जो पॉजिटिव आसीबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो नेगेटिव आसीबो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो लाइक यू वर a b and c are dimension less constants which is to be determined this implies f equal to let me now combining these equation गुड़ा को कंबाइन कर देबा f is proportional to m to power a b to power b r to power c and f equal to k into m to power a b to power b r to power c. This is equation number 1 and here we write here what is k, where k is the proportionality constant. Proportionality constant हैला बर्तमान abc रो वैल्यू जदि हमें बाहर कर दबा ताले इक्वेशन पळे आसीबो हैला हैला कि abc रो वैल्यू जदि बाहर कर दबा ताले हमर आंसर पळे आसीबो इक्वेशन 1 रे पुट करले आंसर पळे आसीबो तब लिखिबी now dimension of LHS of equation 1 dimension of LHS of equation 1 रे LHS रे कोन अछि f अछि f माने कोन फोर्स दैट इज फोर्स रो डायमेंशन कोन अछि m1 l1 t - 2 हैला नाउ बाहर करबी डायमेंशन ऑफ RHS of equation 1 RHS रे कोन अछि k into m to power a b to power b r to power c हैला जेहेतु k रा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहली कोनोसी कांस्टेंट रा डायमेंशन नाही न्यूमेरिकल वैल्यू रा डायमेंशन नाही लॉगरिथम फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की एडिशन सब्ट्रैक्शन एगुडा को डायमेंशन रा सो लिमिटेशन गुडा को सी बाहर करि परबी तो k रा डायमेंशन टा को हमें बाहर कर परियनी बिकॉज़ k इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सो लेट मी m to power a b to power b r to power c bracket let me since k has no dimension k has no dimension बर्तमान m माने कोन मास m1 अछि पावर a वेलोसिटी v अछि v माने कोन l1 t1 होल पावर b रेडियस माने अगेन l1 पावर केते लिखिबी c सो केते डायमेंशन आसीबो m to power a प्ले एटा l to power b होले l to power c
माइनस बी आसे बुझिला क्लियर होला वर्तमान डायमेंशन एलएचएस रा पाइला आरएचएस रा पाइला इक्वेटिंग करियो लेकिन इक्वेटिंग the dimensions on both sides of equation 1 केता आसीबो डायमेंशन केता छी m1 l1 t minus 2 equal to m2 पर a l2 पर b plus c t2 पर minus b देखो both side रे सिंबल एका अछि हां सो पावर गुडा को इक्वलाइज करिवो m रो पावर को एटे m रो पावर सहित l को l सहित t को t सहित लेकिन therefore a equal to 1 b plus c equal to 1 minus b equal to minus 2 this implies b equal to 2 therefore c equal to that as well 2e plus c equal to 1 अछि 1 minus 2 that is minus 1 ହେଲା c डबल गुडे असला let me therefore put the values of a b and c in equation 1 रे पुट करो एडी पुट करियो तो लिखबी f equal to k into m2 power 1 b2 power 2 r2 power minus 1 this implies f is equal to k mv square by r and this implies f is proportional to mv square by r so this is the likhbi which is the required relationship which is the required relationship बुझिला समस्त बुझिला वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच।